یہ کیسی تیری خود غرضی۔ شمشیر اب ہو چکا ہے کمپلیٹلی چینج۔ شمشیر اور اس کے ابو کے درمیان چھڑ چکی ہے اب جنگ۔ اور کیا مہک شمشیر کو چھوڑنے کی آفر قبول کر لے گی؟ کیسی تیری خود غرضی کی ایپیسوڈ 21 پر بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایپیسوڈ 20 کا بھی ریویو کریں گے۔ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ کمال کی یہ ایپیسوڈ تھی اور کیسی تیری خود غرضی کی کہانی 360 ڈگری پر اب چینج ہو چکی ہے۔ یعنی اس ایپیسوڈ سے پہلے جس ٹریک پر سٹوری جا رہی تھی اب اس سے کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے، کیونکہ جناب آ چکا ہے بالآخر سچ کھل کر سامنے شمشیر کے۔ اس سے پتہ چل چکا ہے کہ مہک کا جو موت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس سب کے پیچھے مہک اور اس کے گھر والے نہیں بلکہ اس کے اپنے بابا صاحب تھے۔ ایپیسوڈ 20 کا جو ٹیزر ہمیں دکھایا گیا تھا وہ ساری باتیں اس ایپیسوڈ میں ہم لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ اب شمشیر کے ابو ابھی تک گھر پر نہیں پہنچے، حالانکہ پچھلی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہمیں دکھایا گیا تھا کہ وہ گھر پر آتے ہیں اور شمشیر اور ان دونوں کے درمیان بحث بھی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جو آپ لوگوں کو پرومو نظر آ رہا ہے وہ ساری باتیں اسی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ اور جو ایپیسوڈ آپ نے 21 کا ٹیزر دیکھا ہے وہ ساری باتیں بھی آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نظر نہیں آئیں گی۔ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی، کیونکہ کیسی تیری خود غرضی ڈرامہ اب اپنے اینڈ کی طرف آ چکا ہے اور اب اس کا اینڈ بہت ہی جلد ہونے والا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 24 ایپیسوڈ تک جائے گا میکسیمم، یا 25 کر لیں، اس سے زیادہ یہ آگے نہیں جانے والا۔ کیسی تیری خود غرضی میں اب شمشیر کے سامنے جب سچ آ چکا ہے تو شمشیر کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے۔ اب اسے گلٹ ہے، اور آپ لوگوں کو جو اس سے پہلے نظر آیا کرتا تھا شمشیر جو مہک پر غصہ کرتا تھا اور اس کے گھر والوں پر، اب ایسا آپ لوگوں کو نیکسٹ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اب شمشیر جو ہے وہ سدھر چکا ہے کمپلیٹلی۔ پہلے وہ آہستہ آہستہ سدھر رہا تھا لیکن پھر بھی بیچ میں کچھ غلطیاں کرتا ہوا آپ لوگوں کو نظر آیا، لیکن اب وہ کمپلیٹلی سدھر چکا ہے اور اب اسے اپنی غلطی کا پورے طریقے سے جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے، اور اسے اندازہ ہوا ہے اب جا کر کہ اس نے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ شمشیر کے ساتھ اس کے ابو نے زیادتی کی ہے، لیکن اس کے آگے شمشیر نے مہک اور اس کی فیملی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے اب اسے ریئلائز ہو چکا ہے۔ اور اب یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ شمشیر کیا سٹیپ لے گا۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ شیرو نے اس بات کا کنفیس کیا کہ سارا کیا درا اس کا تھا اور اسے انسٹرکشن دی تھی شمشیر کے ابو نے، اور یہ ساری باتیں سن لیتا ہے شمشیر اور شمشیر کے پیچھے ہی کھڑی ہوتی ہے مہک۔ یہ کافی زیادہ اچھا سین تھا، اور پھر مہک وہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکی اور سیدھا وہ چلی گئی وہاں سے، اور شمشیر کو اب وہ کافی کھری کھری سنا رہی ہیں، آپ سے تم اب ہو چکے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جتنی بھی ایپیسوڈ تھی مہک شمشیر کو آپ کہہ کر ہی بلا رہی تھی، لیکن اب مہک اسے آپ نہیں بلکہ سیدھا سیدھا تم کہہ کر مخاطب کر رہی ہے اور اسے صحیح ڈٹ کر جواب بھی دے رہی ہے۔ مہک پولیس اسٹیشن سے پھر اپنے گھر آئی، لیکن شمشیر کے ساتھ نہیں بلکہ رکشے میں بیٹھ کر اکیلے۔ شمشیر کو لگا کہ وہ اپنے گھر جا چکی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، اور جب شمشیر آیا گھر واپس تو اس کی ماں نے اسے پھر ایک مرتبہ گولی کرانے کی کوشش کی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے شیرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور مہک بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ تو یہ بات ذرا مجھے اچھی نہیں لگی۔ مجھے لگا تھا کہ جو شمشیر کی ماں ہے وہ ایک اچھی ہیں، اور وہ ایون تو مجھے لگا کہ چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن سارا بلیم ایک مرتبہ پھر وہ ڈال رہی تھی مہک پر۔ تو یہ مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی، اور پھر وہی مڈل کلاس والی باتیں انہوں نے کی جو ان سے مجھے ایکسپیکٹیشن کم از کم بالکل بھی نہیں تھی۔ خیر یہاں پر مہک نے کافی اچھے سے ڈیل کیا اور شمشیر کو بولا کہ اپنے باپ کے واپس آنے سے پہلے ہی اپنی ماں سے ذرا جا کر پوچھ لو، کیونکہ انہیں یہ ساری سچائی جو ہے وہ معلوم ہے۔ اور شمشیر نے پھر ایسا ہی کیا، پہلے اپنے سر کی قسم انہیں دے رہا تھا وہ جو نہیں لے رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے سر پر پستول تانی جس پر اس کی ماں نے اس پہ ساری حقیقت بیان کر دی کہ
ये वाकई सच शेरू बोल रहा था, ऐसा सब कुछ तुम्हारे बाप नहीं किया। और जब शमशेर की माँ ने उससे बताया सच कि हाँ तुम्हारे अब्बू ने ही ये सारा कुछ किया है, तो शमशेर की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर जैसे वो गुस्से में बिफर जाता है। उसने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस वो चुप सा हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो गई। यानी उसे अपने गिल्ट महसूस हो रहा था कि जो उसने किया है महक के साथ, उसकी फैमिली के साथ। वो ये समझ रहा था कि ये सारा कुछ जो है ये महक और उसकी फैमिली ने प्लान किया है, उसे बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन दरअसल ये किया तो सब कुछ उसके बाप ने है। अब इसके बाद जो महक और शमशेर का सीन हुआ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और महक ने जो डायलॉग्स बोले वो शमशेर को एक तरह से पंप कर रही थी। और जो मैं अपनी पिछली काफ़ी सारी वीडियो से ये बात कर रहा हूँ कि शमशेर ने महक को तो ज़बरदस्ती अपना लिया, महक के घर वालों को तो उसने दबाव में अपने उनको किस तरह से उसने टॉर्चर नहीं किया, तो वो अपने बाप के खिलाफ किया करेगा। तो कुछ यही पॉइंट जो है जो मैं पिछली काफ़ी सारी वीडियो से रेज़ कर रहा हूँ वो महक ने भी रेज़ किया। तो ये बात शमशेर से कहती हुई नज़र आई कि ये जो तुम में मोहब्बत के नाम पर अकड़ है ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरे घर वालों की है, अपने बाप के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और शमशेर को वो काफ़ी ज़्यादा पंप कर रही थी और शमशेर यहाँ से गुस्से से फिर चला गया। और फिर आए बाबा साहब और वो पहले तो गए पुलिस स्टेशन, उन्होंने काफ़ी दबाव डालने की कोशिश की शेरू पर, उसे थप्पड़ भी मारे, लेकिन शेरू ने कहा अब मैं सिर्फ सच ही बोलूँगा। और ये काफ़ी ज़्यादा उसकी एक अच्छी मूव थी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दारा को भी इस बात का मालूम नहीं था कि उसके अब्बू ने क्या किया है, क्या प्लानिंग की है। और दारा ये बात 2 दफ़ा कहता हुआ हमें इस एपिसोड में नज़र आया कि हम बुरे काम भी करते हैं लेकिन हम किसी की जान नहीं लेते। इस सारे इंसिडेंट में उनके ड्राइवर की जान गई और महक का तो जान लेने का पूरा इरादा था, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुए। सो दारा को भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा और उसे अपने अब्बू का ये एक्ट कुछ पसंद नहीं आया। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। और जो पिछले एपिसोड 20 का प्रोमो में दिखाया गया था वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं हुई। अभी जो शमशेर के अब्बू हैं वो घर पर नहीं पहुंचे। हालांकि हमें जो एपिसोड 20 का प्रोमो दिखाया गया था उसमें तो ऐसा था कि शमशेर के अब्बू वापस घर आ जाते हैं, लेकिन इन शमशेर और शमशेर के अब्बू के दरमियान बहस मुबाहिसा भी हमें देखने को मिला था, लेकिन ऐसा इस एपिसोड में नहीं हुआ जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इसके अलावा आप लोगों को निदा की शादी का एक सीन नज़र आया, और शादी का सीन नहीं है, शादी फिक्स करने का एक सीन नज़र आया। निदा भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है और जब वो लड़का इसे देखने के लिए आता है तो वहाँ पर देख लेता है महक की तस्वीर। और फिर ये रिश्ता फिक्स करने के बाद फ़ौरन ही कोई 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि रिश्ता तोड़ देते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी बेटियां इतनी मशहूर हैं और ब्ला ब्ला, क्या बकवास किस्म की वो बातें थी। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि महक जिंदा होकर वापस आ गई, इस बात में क्या कबाहत थी और इसमें न जाने इन लोगों ने क्या ऐसा आर्गूमेंट ढूंढा हुआ है कि इस तरह ब्लेम किया, इस तरह कीचड़ उछाला निदा पर और उसकी फैमिली पर है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि एहसन ने इस बार कहा कि मैं अपनी जो पुरानी मैंने गलती की थी उसका दावा करना चाहता हूँ और मैं निदा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट ये रेज किया जा रहा है कि हमारे घर की बेटियों से अब कोई भी शादी नहीं करेगा, यहाँ पर इज़्ज़तदार कोई रिश्ता लेने नहीं आएगा, निदा की शादी नहीं होगी। तो इस बात की नफ़ी होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। और अगर एहसन से शादी वैसे हो जाती पहले तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मैं इस बात की नफ़ी होते हुए देखना चाहता हूँ कि अगर एक बहन की ये जो जितना भी कुछ हुआ उसकी वजह से दूसरी बहन पर ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो मैं इस बात की नफ़ी होते हुए देखना चाहता हूँ। ओवरऑल एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, काफ़ी ज़्यादा अब ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो चुका है। कैसे तेरे खुदगर्जी जितना भी ड्रामा है इसकी सारी ही एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। और अब ये जो एपिसोड्स अब आ रही हैं क्योंकि अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो और ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी यहाँ पर दुर्पिशा की भी, और इसके अलावा हम दानिश तैमूर की तो टाइम टू टाइम बात कर ही रहे हैं। और यहाँ पर मैं लाइबा को भी क्रेडिट दूंगा जो निदा का करैक्टर निभा रही हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की, खुसूसी तौर पर जब उनका रिश्ता कैंसिल होता है और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 21 की। और एपिसोड 21 एक और मरतबा आप लोगों को नजर आएगी और भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि शमशेर और उसके अबू अब आने वाले हैं फेस टू फेस और अब इन दोनों के दरमियान होगी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी। और शमशेर अपने अबू को क्लियरली बता देगा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अगर किसी ने आंख उठाकर देखा महक की जानब तो वो आंख निकाल लेगा, भले ही वो बाबा साहब की हो। और मुझे लगता है कि जो उसने
जो अभी तक हो चुका है उस पर भी उनका एहतसाब होना चाहिए, उस पर भी उन्हें जेल में जाना चाहिए। जो उन्होंने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया महक का और एक बंदे की जान भी उस इंसिडेंट में गई, तो उसकी भी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। देखना होगा कि क्या शमशेर उस पर भी कोई ना कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सारी बहस मुबाहिसे के बाद शमशेर ये फैसला करेगा कि अब वो महक को उस घर में मज़ीद नहीं रख सकता और महक को वो लेकर अपने दोस्त के यहाँ चला जाएगा या किसी और घर में वो शिफ्ट हो जाएगा और अपनी गाड़ी, सब कुछ, पैसा, सब कुछ वहाँ पर ही छोड़कर आ जाएगा। वो आप लोगों को एक बाइक पर वो नज़र आएगा और महक और वो आप लोगों को एक बाइक पर सफ़र करते हुए इधर उधर जाते हुए नज़र आएंगे। अब शमशेर के अबू उसे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इन दोनों के दरमियान एक तरह से जंग छिड़ चुकी है, तो शमशेर के अबू उससे इस जंग में हराने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बैंक अकाउंट फ्रीज करा देंगे, उसको हर तरीके से जो है वो मुश्किलात में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन शमशेर, अब हम लोगों ने देखा कि जब उसके पास पैसा था, सब कुछ था, तब भी वो पीछे हटने वालों में से नहीं था और अब भी वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। और शमशेर इसके अलावा जाएगा महक के घर और उनसे माफ़ी भी मांगेगा और कहेगा कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने आप लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी, मुझे अब एहसास हो चुका है। और इस पर बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए माफ़ भी कर देंगे और उससे महक के अबू और उन्हें कहेंगे कि तुम्हारी ये सज़ा बनती है कि तुम्हें कोई भी सज़ा ना दी जाए, क्योंकि अब तुम्हें गलती का एहसास हो चुका है, अब शादी हो चुकी है, अब इतना कुछ हो चुका है, तो बजाय अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के, अब क्योंकि तुम सुधर चुके हो, अब तुम ही एक अच्छे लड़के बन चुके हो, तो क्यों ना इस शादी को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ महक को ओपन ऑफर देगा आगे जाकर। नेक्स्ट एपिसोड में ये नहीं होने वाला, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। एपिसोड 21 में नहीं होगा, आगे चलकर आप लोगों को नजर आएगा कि ओपन ऑफर देगा महक को शमशेर के, अगर तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ, तुम जा सकती हो। लेकिन 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 शमशेर की ये अदा इतनी पसंद आएगी महक को कि महक उससे छोड़ने वाली नहीं है। सो आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि कैसा एंड होने वाला है कैसी तेरी खुदगर्जी का, और क्या एक हैप्पी एंडिंग होगी या एक ट्रेजेडी होगी? इस पर बाय द वे मैं अलग से भी एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। आप लोग भी अपनी आराज़ से कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे यानी सिड मोहसिन अब्बास को दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।